Okay, students, let us proceed to find the integral of format of integral of 1 upon a plus b sine x. Here, one example of this format is given us as integral of 1 upon 3 plus 2 sine x dx. Here a is equal to 3 and b is equal to 2 are given. Students, we know that when such a format are given to find the integral of integral, we assume tan x by 2 is t. Clear? As we discussed in last lecture, if we have given a format of integral of 1 upon a plus b sine x or cos x, we have to assume, we have to substitute tan x by 2 is t, then we get dx is equal to 2 dt upon 1 plus t square and sin x is equal to 2t upon 1 plus t square. Okay, let us substitute that these two substitutions. Okay, let I is equal to 1 upon 3 plus 2 sin x dx, and this one is equal to 1 upon 3 plus 2 and we know that sin x in the form of t is written as 2t upon 1 plus t square and dx is 2 dt upon 1 plus t square. Clear? Our assumption is, our substitution is tan x by 2 is t, then dx is 2 dt upon 1 plus t square, and we know that sin x in the form of tan x by 2 is equal to 2 tan x by 2 upon 1 plus t square. Then we replace tan x by 2 is equal to t, we get 2t upon 1 plus t square. Okay, this one is equal to, that is 3 upon 1. After cross multiplication, we get 1 upon 3 into 1, that is 3 plus 3t square plus 1 2s are 2, that is 2 2s are 4, 4t upon 1 plus t square. Okay, and this one is written as 2 dt upon 1 plus t square. And we know that 1 plus t square, 1 plus t square get cancelled with each other. Okay students, read it out. It is very easy. Okay, आगे बढ़ते हैं. This is equal to 1 upon 3t square, 3t square plus 4t plus, that is now, let us check. 3 1s are 3, 3t square, 1 2s are 2, 2 2s are 4, 4t. Okay, 3t square plus 4t, 3t square plus 4t plus 3, और यहाँ पे क्या लिखा है, that is 2 dt, that is 2 dt, 1 plus t square get cancelled with each other. Okay, students, read out. चलो, 2 is a constant, we can write 2 as outside of the integral, we get 1 upon 3t square plus 4t plus 3 dt. And now this format of integral is matching with our next type of integral, our previous type of integral, that is integration of 1 upon ax square plus bx plus c dx. That is, 1 is present at the place of numerator, and in denominator we have a quadratic expression in x. Here अब यहाँ पे क्या है, 3t square plus 4t plus 3 कैसा है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन t है. यह कैसा है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन t है. तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट कैसा हो गया, अपना प्रीवियस टाइप्स ऑफ इंटीग्रल जैसा हो गया. ओके, तो आप कोई भी कर सकता है इसको, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में we have discussed about such type of format of integral हमने सीखा. क्लियर? अब तो कोई डाउट यहाँ से नहीं आना चाहिए आपको. लास्ट लेक्चर में इस टाइप का सीखा है भाई, 1 upon ax square plus bx plus c, that is quadratic expression in c. हमने सीखा है इसको, we have learned. तो
आइए फिर अब यहां से हम फटाफट करेंगे। क्लियर? तो आप कैसे करते थे, इसको आप बाहर लेते थे, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ओके, मेकिंग, और फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, यहां तो t है तो मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर एज 1, ठीक है। तो 3 को कॉमन निकालिए, वी गेट t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1। ये तो अपना फर्स्ट स्टेप हुआ। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या करते हो आप, टेकिंग थर्ड टर्म, दैट इज उसका फार्मूला क्या है, थर्ड टर्म 1/2, यस, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द होल स्क्वायर, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x टू द होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। अब यहाँ पर t है तो आपको t लिखना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में t है ना, तो क्या लेंगे, इसका फार्मूला कैसा है, द फार्मूला फॉर दैट इज 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ t, t के बगल में क्या है 4/3, आप आम भाषा में बोल सकते हो, दैट इज 4/3 टू द होल स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो 2/3 दैट इज 4/9, 4/9। ये तो रहा आपका tt, मतलब थर्ड टर्म, tt हो गया। अब क्या करते हो, आफ्टर दैट अब ये जो था दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1, 3t स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1 में अपना ये तो सेकेंड स्टेप हो गया। नाउ आवर थर्ड स्टेप क्या करते हो, थर्ड स्टेप में आप जो थर्ड टर्म मिला है उसको एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करते हो। इस प्रोसेस का नाम क्या है, मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर इन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करते थे। करेक्ट। तो अब आप थर्ड टर्म को ऐड करते थे और सब्ट्रैक्ट करते थे। चलिए 4/9 माइनस 4/9 अब किसमें करते थे, उसमें करते थे, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में करते थे जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर, अभी यहाँ पर t है, जहाँ पे 1 आपने बनाया है, मतलब लास्ट स्टेप में इसमें आप ऐड कर दे सकते, इसमें मत कर देना, इसमें आपने जहां पे आपने t स्क्वायर को 1 बनाया है, मतलब उसे कोएफिशिएंट को 1 बनाया है, उसी में आप ऐड करो, उसी में सब्ट्रैक्ट करो, किसको, थर्ड टर्म को, इसको। तो देख लेते हैं, दैट इज 3। अब मैं स्टेप क्या बताया था, टेक अ स्मॉल ब्रैकेट, इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए, इसका स्क्वायर रूट लीजिए, दैट इज t, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर, दैट इज t। अब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस रख दो। अब यहाँ पे कौन आने वाला है, द सेकेंड टर्म इज द कोएफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय 2, जो t का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 4/3 था उसको 2 से डिवाइड कीजिए, ये अपना क्या होगा 4/3 into 2, दैट इज 2 2 जा 4, 2/3 टू द होल स्क्वायर। क्लियर? आपको ट्रिक बताया था हमने, ट्रिक मतलब जो भी है, मेरा तो कोई ट्रिक नहीं, प्रोसेस बताया था। तो अभी ये कैसा बन गया, ये अपने पास क्या है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का फार्मूला, जिसका फार्मूला a प्लस बी टू द होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी टू द होल स्क्वायर में कितने लोग आते हैं, देयर आर 3 टर्म्स इन a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसमें 3 लोग आते हैं, 3 कैंडिडेट्स रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने इसको ऐसा बनाया, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर बनाया, इसमें इसका मतलब क्या, ऊपर वाले स्टेप से any three terms are included in this bracket। कैसे मालूम चला भाई, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर बनाया है, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर में क्या आता है, a स्क्वायर आता है प्लस b स्क्वायर आता है प्लस 2ab होता है। तो लेट अस चेक कि यहां से कौन कौन आए हैं, which three terms are included from the above step to in this bracket, ठीक है। अब इसको हमें ओपन कर लो, दैट इज
t प्लस 2/3 टू द होल स्क्वायर कितना हुआ t स्क्वायर प्लस 4/9 प्लस 2 into t into 2/3 that is t square plus 2 2 is 4 4/3 t plus 4/9 तो t स्क्वायर आया है 4/9 आया है and 4/3 तो these three terms are included in this bracket तो तीन पांच लोग थे there are 5 people first second third fourth 1 2 3 4 5 लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच में से 3 लोग तो आके बैठ गए हैं there are 3 terms are included from 5 terms तो बचे कितने दो लोग कौन कौन से हैं दो लोग हैं 1 है और 4/9 है ओके दिस वन इज इक्वल टू 3 t plus 2/3 to the whole square upon 1 9 1s are 9 after cross multiplication means solution of two fractions तो मैंने यहाँ पर 1 है यहाँ पर 9 है आप कैसे करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो सिंपलेस्ट मेथड है 9 1s are 9 1 4s are 4 तो 9 minus 4 5 5/9 तो 5/9 this one is equal to 3 times 3 t plus 2/3 to the whole square plus under root of 5/3 to the whole square तो ये रहा आपका परफेक्ट अब आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर में चेंज कर दिया इसको जो गिवन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था क्लियर हो गया तो आप कहां से लिखोगे यहां से ये क्वेश्चन उठा लीजिए यहां से सो दिस वन इज इक्वल टू इसको आप ऐसा कर सकते हो विद इन द कर्ली ब्रैकेट विद इन कर्ली ब्रैकेट तो यहां से दिस वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ 3t स्क्वायर मतलब ऐसा तो 3 और t प्लस 2/3 टू द होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 5/3 टू द होल स्क्वायर ब्रैकेट में और यहाँ पे क्या आया था यहाँ पे dt था ठीक है अपने इसको पूरे को इतने 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 को किसमें कन्वर्ट किया है आपने इसमें कन्वर्ट किया है अब यहां से चल के यहां पहुंचे हो बराबर उसको अपने कर्ली ब्रैकेट में मैंने कर दिया है कि यहां से यहां स्टार्ट होता है यहां तक थे आप आपने इसको इस फॉर्म में रिप्लेस कर दिया देखिए 3 कहां पे है 3 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट है तो यू कैन राइट इट एज 2/3 और 1/t plus 2/3 to the whole square plus under root of 5/3 to the whole square dt चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है अब एक ऐसा है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब जो स्पेशल इंटीग्रल्स है 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का अब हम वहां तक तो पहुंच गए हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टाइप का वहां तक तो पहुंच गए हैं ठीक है दैट इज 2/3 एक मैंने यहाँ पे लिख दिया 2/3 3 बाहर में निकाला 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अब अपने पास जो सब स्पेशल इंटीग्रल का फार्मूला है दैट इज 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर क्या होता है दैट इज 2/3 ये तो था ही तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया यहाँ पेस्ट कर दिया कोई दिक्कत नहीं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 1/a ये का मतलब क्या अंडर रूट ऑफ 5/3 1/a into tan inverse of x by a x मतलब क्या x means t plus 2/3 upon a means under root 5/3 और यहाँ पे आएगा प्लस c दिस वन देखो 3 कट गया क्या बचा थोड़ा 3 अच्छा लिख दीजिए 3 तो 2/, अंडर रूट ऑफ 5 tan इनवर्स ऑफ देखो 3 कटे से कटेगा बट यहाँ पर 3t प्लस 2/, अंडर रूट ऑफ 5 भाई अपान में क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप काटो कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है दिस वन इज इक्वल टू 2/, अंडर रूट ऑफ 5 tan इनवर्स ऑफ 3 t का मतलब क्या tan of x by 2 plus 2/,
अंडर रूट ऑफ 5 प्लस सी. सो दिस वन इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? तो आप यहां से यहां तक आप आराम से बना सकते हो. तो इतना है आपका सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल 1/3 plus 2 sin x, that is 2/5 tan inverse of 3 tan x by 2 plus 3 tan x by 2 plus 2/5 plus c. इस तरह से. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? कॉपी कर लीजिए.